وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے سیاحت کا اجلاس، ملک بھر کے سیاحتی مقامات کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی سیاحتی مقامات پر ٹورسٹ ریزورٹ اور بین الاقوامی معیار کے ہوٹل قائم کرنے والوں کے لیے سہولیات دینے کی ہدایت۔ سیاحت کے حوالے سے زیر التوا معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ جہلم اور اس کے اطراف میں ریسٹ ہاؤسز اور دیگر تاریخی عمارات کی بحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں وزیر اعظم عمران خان کو دوسرا ٹیلی فون۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ عالمی برادری مشکل کی گھڑی میں افغان عوام کو اکیلا نہ چھوڑے، رابطے بحال رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ سیاسی پارٹیوں کے کھاتوں میں شفافیت لانا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 5 سال سے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پی ٹی آئی کو ان کے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ ٹھپا مافیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا مقصد ملک میں انتخابات میں شفافیت لانا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں کمزور طبقے کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ حکومت نوجوانوں کی ترقی و بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ چیئرمین کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار کا ورکشاپ سے خطاب۔ چاکی اور نوشکی میں 4G سروس کی فراہمی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت 1 ارب 37 کروڑ روپے کی لاگت سے چاکی اور نوشکی کے 170 دیہاتوں میں 4G سروسز فراہم کرے گی۔ بلوچستان میں آئی ٹی کے شعبے میں 11 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ صوبے کی تمام شاہراہوں پر 4G سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ آئی ٹی کے وزیر سید امین الحق چاگی اور نوشکی میں 4G سروس قریبی علاقوں کے عوام سے مستفید ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 73 افراد جاں بحق۔ 2714 نئے کیسز ریکارڈ، شرح 4.78% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 56,733 ٹیسٹ کیے گئے۔ شہریوں کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن جاری۔ جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنانے والے افراد کے خلاف FIA کا کریک ڈاؤن۔ مختلف شہروں میں گرفتاریاں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد دنیا میں جمہوری اقدار کو فروغ دینا اور جمہوری روایات کو مستحکم کرنا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جمہوری نظام کا تسلسل ناگزیر ہے۔ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے عوام ملک کے اقتصادی اور سیاسی نظام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا پیغام۔ حریت کانفرنس کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان کے ڈوزیے کا خیر مقدم۔ پاکستان نے ہمیشہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کے جنگی جرائم کو بے نقاب کیا۔ ڈوزیے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور ان کے سیاسی حقوق کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی عکاسی ہے۔ پاک فوج نے راکا پوشی پر پھنس جانے والے 3 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا۔ کوہ پیما گلگت منتقل، 1 مقامی اور 2 غیر ملکی کوہ پیما راکا پوشی سر کرنے کے بعد واپسی پر پھنس گئے تھے۔ پاکستان آرمی سمیت ریسکیو کے عمل میں تعاون پر سب کے شکر گزار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نگر کا ٹویٹ۔ غیر ملکی قوتیں افغانستان کے
غیر ملکی قوتیں افغانستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، عالمی برادری حکومت سازی کے لیے بے جا شرائط عائد نہ کرے، طالبان کے نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکالے جائیں، انخلا کے عمل میں امارت اسلامی کے تعاون کا جواب، امریکہ ہمارے لوگوں پر پابندیاں عائد کر کے دے رہا ہے، دباؤ کی پالیسی کے نہ ماضی میں کوئی اچھے نتائج برآمد ہوئے نہ آئندہ ہوں گے، افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی کابل میں پریس کانفرنس۔ پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے کرکٹ سیریز، دونوں ٹیموں کا پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی مشقیں۔ 3 ون ڈے پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 17 ستمبر کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بچوں کی مقبول گیم پن بال کی مشین نے اصلی میدان کی شکل لے لی، لیوٹیوا کے فری رنرز پیول پیٹکنز نے پن بال گیم کو اپنے کھیلنے کا میدان بنا لیا۔ ریٹرو پن بال مشین کی طرح نظر آنے والے 23 ٹن وزنی اور 20 میٹر طویل اس متاثر کن ڈیزائن کو بنانے میں 7 ہفتے لگے۔ 45 ڈگری زاویے پر بنائی گئی اس مشین میں آئیفل ٹاور، امریکہ کا مجسمہ آزادی جیسے گلوبل لینڈ مارکس بھی شامل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں علی جنت اور میں ہوں صبا ریاض، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں سیاحت کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں سیاحت کے بارے میں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر بین الاقوامی معیار کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ سیاحتی مقامات پر ٹورسٹ ریزورٹ اور بین الاقوامی معیار کے ہوٹل قائم کرنے والوں کے لیے حکومت کی جانب سے سہولیات اور ٹیکس میں چھوٹ پر مبنی تجاویز پیش کی جائیں تاکہ ان کو جلد از جلد حتمی شکل دی جا سکے۔ وزیر اعظم نے جہلم اور اس کے اطراف میں واقع ریسٹ ہاؤسز کو دیگر تاریخی مقامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان عمارات کی بحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ سیاحت کے حوالے سے زیر التواء معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبہ پنجاب میں 4 سیاحتی مقامات کے لیے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ اور مینجمنٹ کے لیے بین الاقوامی ادارے کی خدمات حاصل کی جا چکی ہیں۔ اس طرح صوبہ سرحد میں بھی 4 انٹیگریٹڈ ٹورزم رومز کے ماسٹر پلان کے مسودے تیار کیے جا چکے ہیں جن کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبہ پنجاب میں سیاحت کے حوالے سے ذیلی قوانین اور ریگولیشنز کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جلد ان کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا، جبکہ خیبر پختونخوا میں ان کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو اٹک اور بالا حصار قلعے کو سیاحتی مراکز بنانے کے حوالے سے پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سیاحتی مقامات پر سفاری سروس کے اجراء کے لیے سول ایویشن کی جانب سے قواعد میں ترمیم کی جا چکی ہے اور اس کے نتیجے میں نجی شعبے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے 4 صوبوں میں سینٹر لائیو ٹورزم ویب سائٹ مکمل طور پر فعال ہے۔ گورنمنٹ ریسٹ ہاؤسز اور گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے دستیاب کرنے کے حوالے سے پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کو اکیلا نہ چھوڑے، ان کے ساتھ مکمل رابطے بحال رکھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے افغانستان میں ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی فراہمی اور اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے تعاون پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا اہم ترین رابطہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، 2 طرفہ تعاون اور شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور روس کے درمیان قریبی رابطے اور مشاورت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں روس کے ساتھ تعاون کا فروغ ہمارے تعلقات کا اہم حصہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گیس پائپ لائن منصوبے کا
جلد تکمیل کے حوالے سے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے روس کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ صدر پیوٹن نے بھی ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو روس کے دورے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کرانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی حکومت جمہوریت کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ مضبوط بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بلدیاتی نمائندوں کے براہ راست انتخاب کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کو صوبے میں نئے لوکل گورنمنٹ ماڈل پر بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہماری غیر ملکی فنڈنگ کے کوئی ثبوت درخواست گزار نے فراہم نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقدمات 5 سال سے زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے اکبر اسبابر کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیز کے کھاتوں میں شفافیت لانا ضروری ہے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا کہ ٹھپا مافیا ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کا مقصد ہے کہ آئندہ ملک میں انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بھی آئین کے آرٹیکل 218 کے اندر بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے قوم بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ پارٹیاں پیپلز پارٹی نون لیگ 30-40 سال سے 3 باریاں انہوں نے لی ہیں۔ کوئی انتخابات کو صاف شفاف کروانے کے حوالے سے انہوں نے کوئی عملی قدم لیا؟ ہم تو اگر کوئی کام کر رہا ہے اصلاحات کے اوپر تو وہ حکومت کر رہی ہے۔ حکومت اصلاحات لانا چاہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف ہو۔ معاون خصوصی اور چیئرمین کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی ترقی اور بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے زیر اہتمام ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کمزور طبقات سمیت ملک کے نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے جلد صحت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے کا آغاز کریں گے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ جدید علوم میں تربیت کے ذریعے نوجوانوں کی استعداد میں اضافہ کر کے ان کو ترقی کے عمل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے راکا پوشی پر پھنس جانے والے 3 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا ہے۔ 1 مقامی اور 2 غیر ملکی کوہ پیما گزشتہ دنوں راکا پوشی سر کرنے کے بعد واپسی پر 6900 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے۔ پاک فوج نے کوہ پیماؤں کو باحفاظت ریسکیو کر کے گلگت منتقل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نگر نے اپنے ایک ٹویٹ میں ریسکیو کے عمل میں تعاون کرنے پر پاک آرمی متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک پر وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ انہیں عدم اعتماد کی تحریک کی پرواہ نہیں۔ اگر میری جماعت اور اتحادی میرے ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ٹویٹ میں جام کمال نے کہا کہ جس دن میری جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے عدم اعتماد کیا تو خود چلا جاؤں گا۔ پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ نہ ہونے پر مجھے ایوان کا سربراہ ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف اپیل پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف درخواست گزار کی اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست میں ایسے نکات نہیں اٹھائے گئے جن کی بنیاد پر مقدمات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ درخواست گزار نے عدلیہ کی خود مختاری کو بنیادی وجہ بنا کر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کو چیلنج کیا، جبکہ عدلیہ کی خود مختاری کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ کے سامنے آئینی ترمیم کو متعدد بار چیلنج
किया गया, ताहम अदालत ने हर बार एहतियात का मुजाहिरा किया। दरख्वास्त गुजार ने 22वीं आईनी तरमीम की शिक 27 को चैलेंज किया था, जिसके तहत रिटायर्ड जज के अलावा टेक्नोक्रेट या रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सिर्फ रिटायर्ड जज को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात किया जाना चाहिए। अपील पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे, जिसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने अपील दायर की थी। और यहाँ रुक करेंगे अफगानिस्तान का। आपको बता चलें कि अफगानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी ना करें। काबुल पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी हुकूमत साजी के लिए बेजा शराइत आयद ना करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबान के नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाले जाएँ। अमेरिका को दिल बड़ा करके अफगानों पर मजीद दबाव डालने से गुरेज करना चाहिए। अमीर मुत्तकी ने कहा कि इमारत इस्लामी ने अमेरिकियों की मदद की और उनके इनखला की राह हमवार की। हमने अपना वादा पूरा किया कि इनखला अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इस ताउन को सराहने की बजाय अमेरिका हमारे लोगों पर पाबंदियां आयद कर रहा है। हमने गुज़श्ता 20 सालों में देखा है कि दबाव की पॉलिसी के कोई नताइज नहीं थे और ना ही मुस्तकबिल में इसके नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद का वादा किया गया है। हम उन तमाम ममालिक और तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इमदाद का वादा किया। इसके साथ ही हम वादा करते हैं कि ये इमदाद लोगों में शफाफ अंदाज में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी फर्द या ग्रुप को अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के पास अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम काबुल में यूरोप की सिफारती मौजूदगी के लिए रुकन ममालिक के साथ राबता करेंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि तालिबान के साथ हमारे रवाबित की नौयत का इन्हिसार नई अफगान हुकूमत के इक़दामात पर होगा। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान की इमदाद और सिफारती ताल्लुकात के लिए इंसानी हुकूक, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक यकीनी बनाने की शर्त आयद की थी। और तालिबान के अहदेदारान ने ज़िला लोगर में वाक़े मिस ऐनक तांबे की कान का दौरा किया, जहाँ चीन की 2 कंपनियाँ काम कर रही थीं। चीन की चांगशी का कंपनी मेटा जालिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने कहा है कि वो हालात साजगार होते ही दोबारा काम शुरू कर देंगे। दौरा करने वाले तालिबान ने कहा कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और उम्मीद है कि कान में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दोनों चीनी कंपनियों को ये कान 2008 में 30 साला लीज पर दी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कान में 1 करोड़ 10 लाख टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चागी और नोशकी में 4G सर्विस की फराहमी के हवाले से इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। इसी बारे में आपको बताते चलें कि USF और टेलीनॉर के नुमाइंदों ने मुआहदे पर दस्तखत किए और मुआहदे के तहत वजारत IT 1 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से चागी और नौशकी के 170 देहातों में 4G सर्विस फराहम करेगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तमाम शोबों से ज़्यादा 47% शरह नमू है और इस वक्त इस शोबे में 25 मनसूबों पर काम किया जा रहा है। अमीनुल हक ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान में IT के शोबे में इस वक्त 11 मनसूबों पर काम किया जा रहा है। सूबे के तमाम शाहराहों पर 4G सर्विस की फराहमी जारी है। चागी और नौशकी में 4G सर्विसेज की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए IT के शोबों में मुलाजमतें दी जा रही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने कहा कि चागी और नौशकी में 4G सर्विस आने से करीबी इलाकों के अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे और तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दूर दराज इलाकों में 4G सर्विस की फराहमी हुकूमत का बड़ा कदम है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए IT का बहुत बड़ा हिस्सा है। नाज़रीन, मुल्क भर में
24 घंटे के दौरान कोरोना वबा से मुतासरा अफराद की तादाद के हवाले से आपको बता चलें कि मुतासरा मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में अब तक मुहलिक वबा से जाम बहक होने वालों की तादाद 26,938 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 56,733 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,714 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए और मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रिकॉर्ड की गई। शहरियों को वबा से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ 8,90,980 अफराद को वैक्सीन लगाई गई और अब तक मजमूई तौर पर 7,04,02,987 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी है। NCOC की हिदायत के बाद FIA ने उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का दायरा-ए-कार वसी करते हुए मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां की हैं और उन अफराद के जरिए जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले शहरियों का रिकॉर्ड जमा किया गया है और उनसे मज़ीद तहकीकात के लिए उन्हें तलब किया गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मकबूजा वादी का। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में निहत्ते लोगों पर भारतीय फौजियों के बढ़ते हुए वहशियाना मुजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर का खैर मकदम किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौज के जंगी जराइम को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि डोजियर से रियासती अवाम की जदोजहद आज़ादी और उनके सियासी हुकूक के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अक्कासी होती है। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए मकबूजा इलाके तक रसाई देने की गरज से भारत पर दबाव बढ़ाने की अपील का भी खैर मकदम किया। भारतीय हुकाम ने बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की कब्र के गिर्द फौजी पहरात लगा दिया है और काबिज़ इंतज़ामिया को खौफ है कि अवाम जदोजहद आज़ादी के लिए गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में अपने महबूब कायद की कोई यादगार ना तामीर कर डालें। सैयद अली गिलानी के मरकज़ के गिर्द 500 मीटर के इलाके में फौज और पुलिस के 3 दर्जन के करीब गाड़ियां तैनात की गई हैं। हुर्रियत रहनुमा जहांगीर गनी बट वफ्द के हमरा श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर गए और उनकी वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए उनकी खिदमत पर बुजुर्ग रहनुमा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। भारत में फाशिस्ट मोदी हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रही है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर में शवाहिद मौजूद हैं कि भारत किस तरह मकबूजा वादी में जंगी जराइम में मुलव्विस रहा है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली। भारत की फाशिस्ट मोदी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। 1947 से लेकर अब तक भारत ने कश्मीरियों की नस्लकुशी करते हुए 4 लाख से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। अक्टूबर 1947 में RSS ने महाराजा की फौजों के साथ मिलकर 2,37,000 कश्मीरी मुसलमानों को ज़िबह किया। डोजियर में 2014 के बाद से 1747 ऐनी शाहिदीन के बयानात का हवाला दिया गया है। डोजियर में मकबूजा वादी के 89 देहातों में 8,652 इज्तमाई कब्रों की निशानदही की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 574 लोगों को इज्तमाई कब्रों में गैर मुल्की बनाकर दफन किया गया, जो बाद में मकामी बाशिंदे निकले। 2014 के बाद 30,000 से ज्यादा कश्मीरियों के खिलाफ तशद्दुद किया गया है। आर्मी 14 रेजिमेंट डोगरा मेजर मुल्तानी तो तुलास निवास बह आर्मी सेंटर तथस कोर टार्चर तो कलम सेंटर रूलर तुलान तो कर रूलर मे पे 19 4 जंग दोनों पे कट। डोजियर में कहा गया है कि 37 कश्मीरियों को केमियाई हथियारों का इस्तेमाल करके जिंदा जलाया गया, जिनकी बाद में शनाख्त तक नहीं हो सकी। 2014 के बाद 3,850 खवातीन की बेहुरमती की गई और 650 को शहीद किया गया। डोजियर में बरतानवी अखबार गार्डियन का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 8 से 10,000 लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया है। चाय पी रहे थे, अभी नमाज पढ़ के आए, कॉलोनी में आए, न बाहर निकले,
कॉलोनी में आए, उठाए केपी वालों ने, किया क्या उन्होंने? 13 साल का है, 12 साल का है, एक 8वीं में पढ़ता है, एक 7वीं में पढ़ता है। बेगुनाह बच्चों को लेते हैं, हम क्या करेंगे? हमारी कश्मीर का क्या हो गया? पैलेट गन से 120 अफराद शहीद, 1253 बिनाई से महरूम और 1550 शदीद जख्मी हुए। 2014 के बाद 15,500 सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 6,500 घरों को तबाह किया गया। मकबूजा वादी में इस वक्त 6 काले कवानीन लागू हैं। भारतीय काबिज फौज ने 2014 के बाद सरहदी खिलाफ वर्जियों में 198 कश्मीरियों को शहीद और 1049 को जख्मी किया। जाबिर फौज कश्मीरियों के खिलाफ स्नाइपर्स और क्लस्टर एमिनेशन का भी इस्तेमाल कर रही है। जुलाई 2019 में 14 देहातों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय फौज ने क्लस्टर एमिनेशन से निशाना बनाया, जिसमें 4 शहादतें हुई और 14 अफराद जख्मी हुए। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद जमहूरी निज़ाम के बारे में अवामी शऊर उजागर करना है। बैनुल-अक़वामी सतह पर नई जमहूरियतों की हिमायत करना और ममालिक के मबैन हुकूमती सतह पर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करना भी इस दिन के मकासद में शामिल है। और ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर करदा मुत्तफ़िका करारदाद के तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। जमहूरियत के बुनियादी उसूलों में आज़ादी इज़हार राय और हुक्मरानी का हक वोट के ज़रिए हासिल करना, अवामी नुमाइंदगान के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के क़वानीन का नफाज और अदल व इंसाफ शामिल हैं। आलमी यौम जमहूरियत आज मनाया जा रहा है और दिन मनाने का मकसद दुनिया में जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना और जमहूरी रवायात को मुस्तहकम करना है। इसी बारे में तफसील जानते हैं मलिक उमर की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 8 नवंबर 2007 के इजलास में एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की, जिसके तहत हर साल 15 सितंबर को जमहूरियत के आलमी दिन के तौर पे मनाने की मंजूरी दी गई। 15 सितंबर 2008 को पहला आलमी यौम जमहूरियत मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर नई जमहूरियतों की हिमायत करना और मुल्कों में हुकूमती सतह पे जमहूरियत के फ़रोग़ के इक़दाम करना है। पाकिस्तान आईनी तौर पर जमहूरी मुल्क है, ताहम माजी में पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार में गैर जमहूरी और सियासी अदम इस्तेहकाम का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मुल्क में आइन मुअत्तल भी हुआ। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम की कोशिशों में कई सियासी जमातों के नाम आते हैं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आने से कबल तकरीबन 22 साल की तवील जमहूरी जदोजहद की और मुल्क में जमहूरिया को रिश्वत सितानी और बदउनवानी जैसे नासूर से पाक करने के लिए आवाम की ज़हन साजी की। पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश मसाइल में सबसे अहम इंतखाबात में धांधली है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस अमल को शफाफ बनाने के लिए गुज़िश्ता कई साल से जारी कोशिशें इस वक्त अपने उरूज पे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंतखाबी अमल में आने वाली शफाफियत से बहुत से मसाइल सिरे ही से नापैद हो जाएंगे, जिससे मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और उनके पायदार इस्तेहकाम की फिजा साजगार हो सकेगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जमहूरियत की असास है कि हर जमहूरी हुकूमत आवाम से किए गए वादे और अपने प्रोग्रामों को मंशूर के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाती है। तहरीक इंसाफ ने 3 साल के दौरान हुकूमत में न सिर्फ जमहूरी तकाज़ों को पूरा किया, बल्कि कानून साजी में तमाम जमातों से मुशावरती अमल को भी तरजीह दी। तफसील इस रिपोर्ट में देखिएगा। अगस्त 2018 में जमहूरी अमल के नतीजे में मुंतखब होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब भागदौड़ संभाली तो मालियाती अदम इस्तेहकाम, गुर्बत, सेहत और तालीम की नाकाफी सहूलियात जैसे चैलेंजेस का सामना था। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जमहूरी अंदाज में तरक्की का जीना तय किया और न सिर्फ मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाया, बल्कि अवामी फलाह बहबूद और गुर्बत में कमी लाने और कोरोना वबा पर काबू पाने समेत जमहूरी इक़्तिदार को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कानून साजी पर खसूसी तवज्जो दी। कानून साजी के हवाले से अवामी फलाह के 55 कवानीन तैयार किए, जिनमें कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल प्रोसीजर तरमीमी एक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 और लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 जैसे कवानीन शामिल हैं। इन कवानीन का बुनियादी तस्वुर माशरे के गरीब और पसमानदा तबके को मदद फराहम करना था। जमहूरी हुकूमत का ये हुसन होता है कि वो अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक मंसूबों के साथ ऐसी कानून साजी भी करती है जो मुल्क में शफाफियत के साथ एहसाब के अमल को फरोग देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत ने 3 सालों में बिला इम्तियाज एहतसाब के अमल को जारी रखा, जिसके नतीजे में नैब ने बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 अरब रुपए से ज्यादा रिकवरी करके कौमी खजाने में जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में जमहूरी रिवायात की पासदारी और इंतखाबी इस्लाहात समेत हर अहम कानून साजी के अमल में अपोजिशन की तजावीज़ को हमेशा अहमियत दी है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
यौम जमहूरियत पर पैगाम में इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुसलसल मजबूत हो रही है और इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी जद्दोजहद के बाद आई है। ये एक पाकिस्तानी जमहूरियत की मजबूती का साइन है, सिंबल है कि अब इंटरवेंशंस बीच में नहीं होती हैं, हुकूमत अपना टर्म पूरा करती है, इलेक्शन होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी आइन में शिकें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनको भी हम पूरा करते जा रहे हैं। कवानीन के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ मुल्क में बेहतरी ला रहे हैं। और एक जो बहुत हमारी हुकूमत की कमिटमेंट थी कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे जिधर हम गरीब इंसान को उठाएंगे, वो हमारी कमिटमेंट अभी ऑपरेशनलाइज हो चुकी है। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को हम क्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं। 3 साल जो पीटीआई की हुकूमत है उसमें बहुत सी चीज़ें इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से हम कर रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि आवाम को मुकर्रर नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दामात उठाए जाएँ। अपने एक बयान में वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म पर फ़ाल अंदाज में अमल दरामद किया जाए और मार्केट्स में अशिया ज़रूरिया की कीमतों की मौसर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने हिदायत की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पन्नो आखिल का दौरा किया। उन्हें सराई फॉर्मेशन की फील्ड एरिया में ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज का फॉर्मेशन की ट्रेनिंग देखी और मशकों में मसरूफ़ दस्तों ने दिफाई जंग की मुख्तलिफ जज़ियात बाशमूल फायर मरबूत जंगी महारतों का मुजाहिरा किया और फौजी दस्तों से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने शदीद मौसमी हालात में उनकी जंगी तैयारियों, आला तरबियत के मयार, अज़्म हौसले की तारीफ़ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ट्रेनिंग में मुख्तलिफ आर्म्स और सर्विसेज का मौसर और मरबूत निज़ाम किसी भी जंग में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ ने सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। उन्होंने गैर मौसर सहराई हालात में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके के मजबूत दिफा के लिए फॉर्मेशन की तारीफ़ की। बाद में आर्मी चीफ पन्नू आखिल के इलाके दत्तादीनों में सिपाही हिज़्बुल्लाह जतोई शहीद के अहले खाना से मिले और सिपाही हिज़्बुल्लाह रवां माह की 5 तारीख को कोयटा में FC पर बारूदी सुरंग के हमले में शहीद हुए थे। उन्होंने शहीद के ख़ानदान की निगहदाश्त के हवाले से दरियाफ्त किया और हिदायत की कि वतन के लिए जान का नजराना देने वाले शहदा के अहले खाना की बहबूद को मुमकिन बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक जंग में अब तक 1 लाख किसानों में किसान कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी है। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अदनान नूर। पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए किसानों को सरकारी तौर पर बीज, खाद, ज़रूरी आलात और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी देने के लिए किसानों की रजिस्ट्रेशन के अमल के साथ किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो खादों के ऊपर सब्सिडी दी है और जिसके ऊपर किसान कार्ड्स बनने हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद हमारी अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जंग में 1 लाख से ज़ायद किसानों की रजिस्ट्रेशन के साथ अब तक 10,000 किसानों को किसान कार्ड दिए जा चुके हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान ने किसान कार्ड की अजरा का सिलसिला शुरू किया है, ये ओवरऑल तमाम किसानों के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है। किसान पहले ही पिस रहा है, काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस सब्सिडी से काफ़ी खुशी हुई है और ये फ्यूचर में तकरीबन हर किसान के लिए फ़ायदेमंद हो। किसानों के कार्ड के अजरा से काश्तकार और किसान तंजीमों के नुमाइंदे भी मुतमिन दिखाई देने के साथ हुकूमती इक़दाम को सराह रहे हैं। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, छंग।
नाज़रीन, कोरोना वबा के तदारुक के लिए वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी आ चुकी है और बहावलपुर ज़िले में 28 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी बारे में तफसील जानते हैं बहावलपुर से मुख्तार अंजुम की इस रिपोर्ट में। NCOC की हिदायत पर मुल्क भर में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस सिलसिले में बहावलपुर जिला में 28 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। कोरोना वबा की चौथी खतरनाक लहर ने बहावलपुर को भी मुतासिर किया है। महकमा सेहत बहावलपुर जिला में 18 लाख का टारगेट दिया गया है, जिसमें से अब तक 11 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। जिला बहावलपुर में कायम 28 वैक्सीनेशन सेंटर्स में महकमा सेहत का अमला दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। टोटल बहावलपुर में मेरे पास तकरीबन कोई 28 CVC सेंटर है, उसमें एक मास वैक्सीनेशन सेंटर है जिसमें सब हर किस्म की जो वैक्सीन है वो मिल रही है। और उसमें मेरे पास टोटल 18 लाख के करीब ऐसे बंदे थे जिनको हमने वैक्सीन करना था और आज तक हम 11 लाख लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की मुसलसल फराहमी की निगरानी की जा रही है। मैं सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो ये हुकूमत की अच्छी पॉलिसी है कि उन्होंने ये हमें मुहैया की है। हुकूमत का बहुत अच्छा कदम है, सानू मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। आप सबसे इल्तमास है, प्लीज़ आप सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, हम सब भी करवा रहे हैं और इस बीमारी से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करें। बहावलपुर जिला में कोरोना वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। शहरियों से अपील है कि वो जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करा के हुकूमती कोशिशों का साथ दें ताकि इस मूजी वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएंगे। दुनिया भर में गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है और बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं और इससे तमाम तर तबाही का जिम्मेदार भारत है, जिसने डेल्टा वायरस फैलाकर दुनिया का अमन सुकून बर्बाद कर दिया है। डेल्टा वायरस के बायस अमेरिका में कोरोना वबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान औसतन 1.5 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि 1000 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4 करोड़ 22 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि 6,81,000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। खुद भारत में रोजाना हजारों हलाकतें हो रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत आदादो शुमार में हेर फेर करती है, हलाकतें और नए केस शायद छुपा लेती है, जिसकी वजह से महज़ब दुनिया भारत के सरकारी आदादो शुमार पर एतबार नहीं करती। ब्राज़ील, मैक्सिको, बरतानिया और रूस में भी कोरोना से वसी पैमाने पर जानी नुकसान हो चुका है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन गागा ने मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मकीनों और ज़ायरीन को रवानगी से 72 घंटे कबल मनफी PCR टेस्ट जमा कराना होगा। सऊदी अरब पहुंचने पर 5 दिन के लिए घर में करंतना भी लाजिम होगा, जिसके बाद दोबारा PCR टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट के नताइज मनफी आने की सूरत में करंतना की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। जिन अफराद ने सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की इजाफी खुराक लगवाना होगी और नजरसानी शुदा ज़वाबित कार का इतलाक 23 सितंबर को रात 12 बजे होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत में उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोज़ाबाद में डेंगू बुखार से तकरीबन 150 मरीजों की हलाकत हो चुकी है और मुनासिब इलाज में कमी के बायस मरीज दम तोड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 465 है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी बड़ी तादाद में मरीज इलाज करा रहे हैं। गरीब मजदूर इलाज के लिए माशी तंगी की वजह से दर दर भटक रहे हैं और उनके बच्चे उनके हाथों में दम तोड़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 15 मरीजों के मरने की इत्तला है। शिमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जो समुद्र में गिरे। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ये मिसाइल समुद्र में गिरे। जापान ने कहा कि एक मिसाइल इसके खुसूसी इक्तसादी जोन के बाहर गिरा जो शिमाली कोरिया से फायर किया गया था। जापान के वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और शिमाली कोरिया ने चंद रोज़ पहले भी तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का तजुर्बा किया था। नाज़रीन, दुनिया के अजायबात में से एक बरतानिया के स्टोन हेंज की एक बार फिर मरम्मत की गई है और स्टोन हेंज ज़माना कबल तारीख की यादगार है और एक अंदाजे के मुताबिक ये यादगार आज से 5000 साल पहले भी मौजूद थी।
ये यादगार बड़ी जिसामत के खड़े पत्थर हैं जो कि एक गोल दायरे में है। यादगार की मरम्मत के दौरान इन पत्थरों में बड़े पैमाने पड़ी दरारों को भरा गया। पिछली बार तकरीबन इसी साल पहले इस यादगार की मरम्मत की गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, सबसे पहले आपको आगाह करें कि अगले 2 रोज़ तक कराची शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर मौजूद हवा के कम दबाव की वजह से समंदरी हवाएं बंद होने से शहर कायद में दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से ज़मीर अब्बास। जी ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि अगले 2 रोज़ तक कराची शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। और ऐसा इसलिए है कि भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर मौजूद हवा के कम दबाव की वजह से समंदरी हवाएं बंद होने से शहर कायद में दर्जा हरारत में भी इजाफा हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कराची में जारी हीट वेव के बारे में, और बताया ये जा रहा है कि अगले 2 रोज़ तक कराची जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। और ऐसा इसलिए है कि भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से कराची में भी समंदरी हवाएं बंद हैं। इसकी वजह से हीट इंडेक्स में इजाफा देखने में आया है और कराची अगले 2 रोज़ तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। ये ख़बरदार किया गया है कराची के शहरियों को, और ऐसे में आवाम से कहा गया है कि वो बाहर निकलने से इज्तिनाब करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और अगर घर से बाहर निकलें तो सर को कपड़े या किसी गीले कपड़े से ढांप लें, क्योंकि कराची में अगले 2 रोज़ तक शदीद गर्मी रहेगी। और बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर हवा का कम दबाव मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से। जी ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा हीट वेव के बारे में जो कराची में अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगी। कराची में इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। ये शिद्दत कल से यहाँ पे इसमें इजाफा हुआ है। उसकी असल वजह भारत में जो गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में एक हवा का कम दबाव मौजूद है, ये उसकी असल वजह है, क्योंकि वो वहाँ पे हवा का कम दबाव जो है उसने हवा तकरीबन समंदर की अभी तरफ खींच ली है, और उस समंदरी हवाओं के मुनक़ता होने की वजह से कराची में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और हब्स में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो कैफियत है गर्मी की, ये कल तक मज़ीद जारी रहेगी। उसके बाद मौसम दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज भी कल के दिन हमने देखा कि तकरीबन 40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंचा था। आज तकरीबन 41 तक जाने का इम्कान है। ताहम आज कदरे बेहतर मौसम इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि नॉर्थ की जो हवाएँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि जो मैदानी इलाकों की हवाएं वो कुछ बेहतर हैं, और जो मतला है वो भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे इनको सपोर्ट मिली बादलों को, तो तकरीर शाम के औकात में या रात के औकात में हल्की बारिश भी मुतवक्का है, क्योंकि ये आपने बताया कि आपको कि लो प्रेशर की वजह से हवाएं मुनक़ता हुई हैं। ये अगले 1 या 2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद दोबारा समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी, और 17 के बाद एक और सिस्टम जो है उस मानसून का, वो शायद सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें भी मुतवक्का हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें कराची से आगाह कर रहे थे हीट वेव के बारे में। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम ज़ेरी सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।